Yeah, good morning students. Here is the chapter number 2 of 7 Science, Nutrition in Animals. And this chapter we will complete in 3 parts. Its discussion, its explanation will be completed in 3 parts. So here is the part 1 of this chapter number 2, Nutrition in Animals. So basically the very first topic is nutrition in animals. So first of all, what is nutrition? As we have discussed in our last class of chapter number 1, the nutrition is the substances which are needed by our body so as to for the growth and development of the body of human beings, whether these are animals or whether these are we people. So nutrition in animals. So basically this nutrition in animals is for the all the animals like lion, deer, rhinoceros and elephant and so many animals which we usually like are goat and cow or buffalo, etc. So what is the process of nutrition in animals? So basically nutrition is the process, is the complete process by which our body usually gain the food, intake and digest it, and then used by our body in the form of energy. So nutrition in animals, it consists of 5 stages as it's given in your book also. So first one is ingestion. So basically ingestion stands for the intake of food. जो भी खाना हम खा रहे हैं, that process is known as ingestion of food. The intake of food is known as ingestion. After that digestion, the breakdown of that, the food which we are eating, जो खाना हम खा रहे हैं उसको डाइजेस्ट होने का जो प्रोसेस है, उसका जो हमारा जो हम खाना कंज्यूम कर रहे हैं, जो फूड हम कंज्यूम कर रहे हैं, वो बेसिकली बल्क फॉर्म में है और उसको जो है छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना, दैट इज takes place by the process of digestion. So basically the breakdown of food materials into the simpler substances is known as digestion of food. After that absorption, so the whatever we are consuming, that is absorbed by the tissues in our body. So जो हम खाना खा रहे हैं वो जो है छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है एंड आफ्टर दैट ये जो है हमारी जितनी भी सेल्स हैं, जो टिश्यूज़ हैं, जो हमारी बॉडी है, हम जानते हैं कि हमारी बॉडी जो है सेल से मिलकर बनी हुई है, तो ये जो है हमारे टिश्यूज़ तक जो है ट्रांसफ़र हो रहा है. तो बेसिकली जो हम खाना खाते हैं वो कहाँ पहले हम खाएंगे, फिर वो डाइजेस्ट हो गया एंड आफ्टर दैट दिस विल गो टू द ईच एंड एवरी टिश्यू एंड सेल tissues as well as cell of the body of the animals. After that assimilation. So what is assimilation? Assimilation is the use of that is means for the accumulation of simple substances so as to form the complex substance required by the body. तो कहने का मतलब ये है कि जो भी फूड हम खा रहे हैं वो छोटी छोटी फॉर्म में जब इकट्ठा एक जगह होता है, सो एज टू मतलब जिस बॉडी पार्ट्स को जितनी ज़रूरत है वो उतना उसको लेता है और उसको जो है बड़े कॉम्प्लेक्स साइज़ में दोबारा से बनाने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए, तो जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है दैट इज़ नॉन एज एसिमिलेशन. तो ये जो पूरा फिनोमेना है, ये जो पूरा प्रोसेस है कि सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक होने के बाद इसको दोबारा से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाना, दैट इज़ नॉन एज एसिमिलेशन. एंड आफ्टर दैट इजेशन इज़ द एक्सक्रीट आउट ऑफ द बॉडी. कि जो भी हमने खाना खाया है उसमें जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो जो है हमारा एक्सक्रीट आउट हो जाता है, हमारा यूरिन और वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में, जो हमारा यूरिन और वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में जो बाहर निकल जाता है, दैट इज़ नोन एज वेस्ट मटेरियल. सो बेसिकली इजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड. एलिमिनेशन मीन्स बाहर निकलना, एलिमिनेशन मीन्स ख़त्म कर देना, बाहर निकलना. तो एलिमिनेशन इज़ द इजेशन इज जनरली द एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी. So that's all about the nutrition in animals. And the second part is nutrition in amoeba. So basically dear students, what is amoeba? Amoeba is the simple सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी बॉडी जो है बहुत सारी सेल्स से मिलकर बनी हुई है, जो एक सेल से पूरा टिश्यू बनता है, टिश्यू से फिर ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से फिर पूरी बॉडी स्ट्रक्चर बनती है. तो इसी तरीके से अगर हम सिंगल सेल की बात करें तो अमीबा जो है हमारा एक सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि एक सिंगल सेल का बना हुआ है. तो इसमें न्यूट्रिशन कैसे होता है कि सबसे पहले जो ये देखिए, ये जो हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जो है हमारा, व्हाट इज़ न्यूक्लियस? न्यूक्लियस जिस तरीके से हमारा ब्रेन होता है, हमारा हार्ट होता है, तो इसी तरीके से ये जो है हमारा, इसमें जो इसका जो हार्ट है, न्यूक्लियस जो हमारा अमीबा है, इसका जो न्यूक्लियस है वो इसका एक हार्ट है.
तो इसका जो हमारा जो अमीबा है उसका जो हार्ट है वो क्या है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस जैसे ही हम इसको फूड पार्टिकल्स इसके पास आएगा तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये जो है अपनी बॉडी को एक्सपेंड करेगा। सूडोपोडियम जिसको बोला जाता है, सूडोपोडियम जो है हमारा वो पार्ट होता है जो है हमारा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, और वो जो है फूड की तरफ जो है चारों तरफ उसको जो है एक उसकी तरफ जो अट्रैक्ट होती है बॉडी और पूरे तरीके से उसको अपने अंदर ले लेता है। और दैट इज़ उसको कहा जाता है जब पूरी बॉडी, जब ये पूरा अमीबा के अंदर फाइनली जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा, फूड जो है, जो अमीबा जो है इस पर्टिकुलर फूड पार्टिकल को कंज्यूम कर लेगा, सो दैट वुड बी नोन एज द फूड वैक्यूल। तो ये जो हमारा फूड वैक्यूल हो जाएगा। और इसी के साथ साथ क्या होता है कि सेम प्रोसेस वही है कि जो हमारा न्यूक्लियस है, जो हमारा बॉडी, जो हमारा अमीबा है, अमीबा ने को फूड पार्टिकल मिला, फूड पार्टिकल मिलने के साथ साथ जो उसने अपनी बॉडी को एक्सटेंड किया, एक्सटेंशन ऑफ बॉडी पार्ट्स, और एक्सटेंशन ऑफ बॉडी पार्ट्स जैसे ही होता है फिर उसके बाद वो फूड वैक्यूल बना करके उसको अपन अंदर ले लेगा, और इससे जितना भी अनडाइजेस्टेड और जो उसका जो भी एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो उसका जो है बाहर उसको थ्रोन आउट कर देगा अपने एक पर्टिकुलर पार्ट से, अपनी बॉडी से ही उसको बाहर निकाल देगा। सो दिस इज़ द न्यूट्रिशन इन अमीबा। और न्यूट्रिशन जो है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इट इज़ एन काइंड ऑफ सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसमें सिर्फ एक सिंगल सेल होती है। और जो है उसके बाद जो है ये जो है हमारा फूड वैक्यूल जो है, जो फूड पार्टिकल आएगा, फूड पार्टिकल के बाद जो हमारी बॉडी है वो जो आगे की तरफ अपनी प्रोजेक्शन इंक्रीज़ करेंगे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को अपनी बॉडी को आगे इंक्रीज़ करके फूड वैक्यूल बना लेगी। फूड वैक्यूल बनाने के बाद जो है ये पूरा इसका जो फिर सेम वही प्रोसेस होगा डाइजेशन का, और डाइजेशन के बाद जो अनडाइजेस्टेड पार्टिकल है वो हमारा बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, बॉडी बाहर उसको रिलीज़ कर देगी। तो ये है हमारा न्यूट्रिशन इन अमीबा। सो डियर स्टूडेंट्स, so in this part we have discussed about nutrition in animals and nutrition in amoeba. So that's all for today's first part. So read this carefully and just be safe and stay healthy at your home. So in next session we will give you the next video. So till then, thank you.